Hello and good morning, class 11th. Yesterday I had started teaching you direct and indirect speech, which is also called reported speech. But before that, I'll once again repeat to you the 5 types of sentences because it is very necessary to recognize them, to know which sentence is which one or which sentence belongs to which category. See, I told you yesterday also that assertive sentence has 2 categories, affirmative and negative. Affirmative means any straight or plain sentence. For example, if I say I'm teaching, this is a straight sentence. I have done my work. I'll be doing it soon, or I have been doing it for quite some time. These are all affirmative sentences. If I use not or never or any such negative words which deny, which refuse, which do not accept that it is happening, then it is called a negative sentence. For example, the students are not going to school. We are not doing anything these days. They are not doing their job properly. So not word repeatedly used in these sentences, that is what is called a negative sentence. Such sentences are called negative sentences. And I also told you that in order to connect such affirmative and negative sentences, we use that. Remember this, the connector between the reporting verb as well as the quoted speech, means the speech that is kept in the inverted commas. In order to connect that, we use that. Another one I had told you is interrogative sentence. I told you that there are 2 types of interrogative sentences also. For example, one is which start with auxiliary verbs. Sentences जो auxiliary verbs से start होते हैं और उनका उत्तर हमेशा हाँ या ना में होता है. जैसे are you studying properly? Either it can be yes or no. Will you go to the market in the evening? Have you done your work? Have you finished your classwork? Have you prepared a notebook for yourself? Things like that. See, when we ask questions using auxiliary verb at the beginning of the sentence, that is what is called yes-no type. Such sentences are called yes-no type questions. And yes-no type questions, I told you, are added by the connector. This asked word is used, and then we use if or whether. So with the help of if or whether, we connect the sentence. For example, I'll give you a plain example, although I had told you this yesterday also, that he asked, comma inverted commas, will you go to the market? Then we'll turn it, instead of he said, we'll be doing he asked, or he asked his friend if he would go to the market. Will become would because the reporting verb is in the past. So if he would go to the market, like that, we should be converting it using if or whether. But if the question starts with a question word, for example, what are you doing here? My friend said to me, comma inverted commas, what are you doing here? So my friend asked me what I was doing there. In this way, we convert it. So the conversion of the sentences differ. ये अलग अलग ढंग से बदले जाते हैं बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में. अब आ जाइए आप कमांड और रिक्वेस्ट में. कमांड में यू नॉर्मली हम नहीं यूज करते हैं. जैसे गो टू स्कूल, डू इट, कंप्लीट इट, इसका मतलब यू कंप्लीटेड. सिट डाउन का मतलब यू सिट डाउन. ऐसा नहीं है कि हम दीवार से बोल रहे हैं. तो नॉर्मली इसमें यू जो है वो यूज नहीं होता है. हालांकि यू यूज भी होता है. जैसे अगर हम कमांड कर रहे हो 2 लोगों को, you do this work and you type the letter. You complete your homework and you start writing the question answers of that chapter. In this way, when we order 2 people or when we command 2 people, then of course you is used. 2 या 2 से ऊपर. इसके अलावा you का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी बात को जोर देने के लिए कहते हैं. जैसे किसी ने कहा shut up, will you, या you shut up. ये जो you shut up यानी कि दोबारा किसी बात को जोर देने के लिए कहते हैं, तब हम यू का इस्तेमाल करते हैं, वरना नहीं करते हैं. और ऐसे सेंटेंसेस को नॉर्मली टू से जोड़ा जाता है.
और उसका टोन एंड टैनर देखना होता है कि उसमें टैनर क्या है, टोन क्या है उसका, यानी कि कमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, या खाली रिक्वेस्ट है, लाइक दैट। और फिर आता है इसी में, ये कमांड वाले में एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट को जो है वो करा जाता है प्लीज, काइंडली, would you like to, in this way also the request is made, and in such cases also we use or we connect these sentences with to से कनेक्ट करते हैं। लेकिन हम जैसे प्लीज या काइंडली वगैरह यूज हुआ है तो हम रिक्वेस्टेड, हालांकि दूसरे भी शब्द हैं लेकिन हम बहुत नॉर्मली रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू कम और टू गो देयर, लाइक दैट। अब आ जाते हैं दो और तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि हमने कल नहीं लिए थे, अब इनको समझ लीजिए, और ये दोनों भी अलग ढंग से जुड़ते हैं। नाउ फोर्थ वन इज, जैसे ये है पहले हम ले लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ है ऑप्टेटिव। Now what are exclamatory sentence? जैसे what a good book, what a good book, इसका मतलब हुआ what a good book it is। ये कंप्लीट सेंटेंस है बच्चों, हालांकि नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते पर इसमें वर्ब होता है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। वर्ब अकेले भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे रन, या जनरल डायर ने कहा फायर, एक ही वर्ड था और वो वर्ब था, तो वर्ब अकेला भी यूज हो सकता है, रन, गो, सिट, स्टॉप, लाइक दैट। तो बच्चों ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है और सरप्राइज व्यक्त करने के लिए आता है, और इसको हम जोड़ते हैं ही एक्सक्लेम्ड फिर दैट करके। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ गुड बुक, क्योंकि व्हाट अ गुड बुक का मतलब व्हाट अ गुड बुक इट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी गुड बुक। वेरी गुड आप कहेंगे कहां से आया, तो वो एक्सक्लेमेशन के सेंस से आता है। और ऐसी लास्ट जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बच्चों प्रेयर, हालांकि इसे आपकी किताबों में जो है वो एक्सक्लेमेटरी के साथ ही दिया रहता है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें प्रेयर है, कर्स है, यानी कि किसी को लानत भेजना, कर्स, अभिशाप देना, श्राप देना, या फिर प्रेयर करना किसी के लिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, या ही प्रेड टू गॉड टू ब्लेस हिम, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर जैसे कर्स देना, मे ही बिकम अ पॉपर, पॉपर मीन्स अ वेरी पुअर पर्सन, मे ही गेट डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाएगा, इस तरह के इन्हें कर्स कहते हैं। तो ही कर्स दैट ही बी डिस्ट्रॉयड, और ही कर्स हिम टू गेट डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से हम इन्हें चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बच्चों ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पहली बात तो इनको समझ लेना बहुत जरूरी है, और आप इनको समझ लीजिए। मैं तुरंत फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर रहा हूं। और पहला रूल जो है वो फर्स्ट रूल आई एम गोइंग टू टेक अप हियर। इनको आप लिख लीजिएगा, ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और इसके बाद फिर मैं आ जाता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोबारा से। देखिए मैंने कहा था कि अगर ये है रवि सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, बच्चों एक तो ये बात समझने की है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये है असर्टिव सेंटेंस, या आप कह लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके भी 2 पार्ट्स मैंने बताए थे आपको, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव तो बच्चों ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल। या अगर हम कहें कि राज सेज वी are not friends yet,
यानी कि हम अभी भी दोस्त नहीं बने हैं, यानी कि यहाँ पे नॉट आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों असर्टिव होते हैं, तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम दैट से जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये रवि सेज में हो गया रवि सेज। अब बच्चों पहला रूल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है, अंदर टेंस चेंज नहीं होता है। आप इसको वॉज गोइंग नहीं करेंगे जैसे कि कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा रवि सेज दैट ही, आई की जगह हो जाएगा ही, जो कि आई जो शब्द है वो रवि के हैं। सो वी विल बी सेइंग ही इज आएगा न कि वाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब से गाइडेड होता है। यानी कि मैंने बताया आपको, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो अंदर सेंटेंस आया है वो किस टाइप का है। तो ये है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव है इसलिए दैट से जुड़ेगा। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस नहीं बदलता है, इसके हिसाब से अंदर का टेंस बदलता है। तो अगर ये प्रेजेंट में है या ये फ्यूचर में अगर होता, अगर हम यहाँ पे कहते राज विल से तो भी ये एक ही सा रहता। तो ये इसका फर्स्ट रूल है बच्चों, फर्स्ट रूल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, जैसे ये राज विल से मैंने कहा, तो द टेंस ऑफ द इन्वर्टेड, ये रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, पर मैं इसको यूज करूंगा कोटेड स्पीच। ये कोटेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। तो रवि सेज दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यानी कि ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा उतर जाएगा, एक्सेप्ट दैट ही इज, वी आर यूजिंग नॉट आई एम, क्योंकि आई के साथ एम होता है तो हम ही इज यूज करेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही राज विल से, तो यहां पर भी हो जाएगा राज विल से दैट दे, क्योंकि वी जो है उसने अपने साथियों के लिए कहा है, तो वी विल बिकम दे, लेकिन आर जो है ये आर ही रहेगा, दे आर नॉट फ्रेंड्स येट। इस तरह से ये बनेगा नेगेटिव। तो ये पहला रूल है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक आदत होती है कि पास्ट में चेंज कर देने की, लेकिन पास्ट में तभी चेंज होता है जब यहाँ बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा। और एक और चीज समझ लीजिए यहाँ पर जैसे हम कहें कि रवि सेज टू राज आई shall drop in your house in the evening। अच्छा, ड्रॉप इन का मतलब भी होता है आई शैल विजिट, आई शैल कम टू योर हाउस, यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आने के लिए ड्रॉप इन। तो ही सेज, रवि सेज टू राज, इसको हम सेज के बजाय हम कर देंगे इसे रवि टेल्स, और यहां सेट टू होता तो हम इसे टोल्ड कर देते। तो रवि टेल्स राज दैट, देखिए दैट से जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा दैट से जुड़ते हैं। तो दैट ही, अब मैंने बताया था आई और वी के साथ शेल लगते हैं और बाकी के साथ विल, तो यहाँ पर ये शेल न लग के हम यहाँ पे कर देंगे ही विल, और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसे ही रहेगा, ड्रॉप इन, ये योर की जगह हो जाएगा हिज हाउस, क्योंकि दो अलग लोग बात कर रहे हैं, हम में से कोई नहीं है, योर आई यू का मतलब ही नहीं होता है, तो दे बोथ आर टॉकिंग। तो रवि सेज टू राज, रवि टेल्स राज दैट ही विल ड्रॉप इन हिज हाउस इन द इवनिंग, तो यहाँ योर हाउस का हो जाएगा हिज हाउस इन द इवनिंग। तो बच्चे ये तो पहला जो रूल है इसको आपको बहुत ढंग से समझ लेना चाहिए, क्योंकि वरना कंफ्यूजन होगा, आप इसे टोल्ड कर देंगे, ये टोल्ड नहीं होता है, यहाँ पे होगा टेल्स ही। अब देखिए अब मैं और एक चीज जो आपको समझ लेनी चाहिए कि टेंसेस के कैसे बदलाव होंगे उसमें, कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा, इसको आप नोट कर लें पहले, क्योंकि वरना आप इसे टेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेंसेस नहीं सीखेंगे तो आगे की एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे आप, और क्या बोलते हैं एक्टिव पैसिव भी नहीं कर पाएंगे, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ये तो तय बात है। तो टेंस तो आपको जानने ही पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी टेंस चेंज के बारे में बता रहा हूँ, उतना आप पहले ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ईजी है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ये कब होता है? जब व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। इस कंडीशन में होता है, ऐसे नहीं कि हर जगह कहीं भी चेंज कर दिया। ये बात को बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट देन ओनली सच चेंजेस विल अकर। Now present indefinite will change into past indefinite. Present continuous will change into past continuous. इसको आपको उतारना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, या आपके पास किताब होनी चाहिए। और फिर present perfect changes into past perfect, और present perfect continuous into past perfect continuous। बच्चों बहुत इजी है। देखिए, ये पैरेलल है बिल्कुल। प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आ जाइए पास्ट में। पास्ट में जो पहले के दो होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंसेस जो है फर्स्ट टू टेंसेस है। ये फर्स्ट टू टेंसेस जो है वो थर्ड और फोर्थ टेंस में बदल जाते हैं। जैसे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे ख्याल से ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। एक तो ये कि प्रेजेंट के सारे टेंसेस वैसे की वैसे पास्ट में चेंज हो जाते हैं। फिर दूसरी, पास्ट के टेंसेस कैसे चेंज होते हैं कि पहला वाला थर्ड बन जाता है, सेकंड वाला फोर्थ बन जाता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फिर इसके बाद क्या रहा? यहाँ पे रहा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनका क्या होगा फिर? कंटिन्यूअस। ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि they will remain the same. Past perfect will remain past perfect only, and past perfect continuous will remain past perfect continuous only. Now what about future tense? Future tense में there won't be much change. There will not be many changes. क्या होगा कि shall will become should, shall बन जाएगा आपका should, और will बन जाएगा would, will बन जाएगा would। और इसी तरह के और भी जितने भी वर्ब्स हैं वो अपने पास्ट फॉर्म ले लेंगे। जैसे माना अगर मे होगा तो माइट हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, वॉज जो है हैड टू में बदल जाता है, और वॉज हैड बीन में भी बदलता है। वॉज वैसे नॉर्मली जो है वो हैड बीन में ही बदलता है, हैव टू और हैज टू हैड बीन हो जाएगा, और कभी कभी वॉज ही रहेगा अगर वो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं। और फिर हैव विल बिकम हैड, हैव विल बिकम हैड का मतलब सब जगह हैव टू होगा तो हैड टू हो जाएगा, हैव बीन होगा तो हैड बीन हो जाएगा, इस तरीके से। और हैड टू विल रिमेन हैव टू, और इसको हम चेंज और टू में भी कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये चेंजेस हो जाते हैं। यानी कि टेंस चेंज ये है, और ये है वर्ब के चेंजेस। इनको ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भी जो वर्ड शोइंग नियरनेस शो डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हियर विल बिकम देयर, दिस विल बिकम दैट, दीज विल बिकम दोस, दैट ईयर विल बिकम, दैट ईयर विल रिमेन दैट ईयर ओनली, बट दिस ईयर विल बिकम दैट ईयर, टुडे विल बिकम दैट डे, tomorrow will become the following day, or the coming day, or the next day.
next day. And then for yesterday we use the previous day or the day before. इस तरह से ये चेंजेस होते हैं. इसके बाद हम कल से इन्हें इन कंटिन्यूटी ये सारे टेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन याद रखिए, you must remember the tenses first, and then only you will be able to successfully convert these tenses into indirect speech. Otherwise, it will remain a constant trouble, constant problem, constant source of difficulty for you. So learn the tenses at the earliest. Thank you so much.